Hello, am I audible? Hello, am I audible? Yes, Yes, sir. yes, ma'am. Okay. So in case no questions from what we discussed yesterday, uh, yeah. So how we got these numbers? Now let's start this again para by para. So now looking at the first para. Okay. So I told this, I explained this yesterday to you that how we have bifurcated this into phase one and phase two. So phase one is something which is the part of the toll which is being constructed above the land. Okay. And phase two is a part of the construction which is constructed above the sea. Okay. So that is what the phase one and phase two is. This bifurcation is done by the engineering team of the client, not by us. ठीक है, बिकॉज दोनों फेजेस की कॉस्टिंग अलग है, टाइमिंग अलग हो जाता है. अगर आप जो एक सी के ऊपर बना रहे हैं और पार्ट ऑफ द टोल एंड जो आप लैंड के ऊपर बना रहे हैं, दोनों का investment in terms of time, in terms of cost is very, very different. That's why the bifurcation is required. Now, how these numbers were calculated? Okay, as I said yesterday, these numbers in the first para are given by the engineering team of the client. We had couple of round of meetings with the engineering team of the client to understand how these numbers were computed, and of course, because we are not the SMEs into the engineering world, correct? So that's something. I don't know. Do we have any engineers in this? But definitely, I'm not an engineer. So in terms of how these construction costs or construction timings were computed by the client, we were not very clear. So we want to get a sense around this. So what we understood. So ध्यान से देखना. तो पहले मैं phase one समझा रहा हूँ आपको. Now suppose this is the land. So land पे ऐसे you will create, मतलब the engineering team will create a pillars. These are called as pillars, and इस pillars पे वो slab रखते हैं. And this is what the toll will be. So on this the car will go and ठीक है. Now I think मैंने कल भी बताया था, but ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो ये height होता है, this height was specified by the government. जो वो टेंडर था उसमें लिखा हुआ है कि इतनी हाइट पे बनेगा. यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है. So what engineering team does, they know कि 1 kilometer. So they know कि at a given height, 1 kilometer at a given height, ये हम land की बात कर रहे हैं, which means phase one की बात कर रहे हैं.
at a given height 1 किलोमीटर का स्ट्रेच उनको पता है कि 1 किलोमीटर का स्ट्रेच अबव द लैंड इज x रुपीस एंड टाइम इज y. ठीक है, ये क्लियर है कि 1 किलोमीटर का लैंड पे इतनी हाइट पे एक स्ट्रेच बनाना कि कॉस्टिंग x है और टाइम y है. सपोज टोटल लेंथ above the land वाला जो पार्ट है let's assume is let's assume 20 km. तो फेज 1 की कॉस्ट 20x हो गया और 20y हो गया. यहाँ तक कोई डाउट? This 20y came. So let's assume y is 1 month. तो अगर मुझे Okay. 1 किलोमीटर बनाने में 1 मंथ लगता है तो 20 किलोमीटर बनाने में 20 मंथ्स लगेगा ना. Okay, we are defining this. It has no. I thought we have just derived. नहीं नहीं, x और y एक नंबर्स है. सो अगर आपको नंबर से लेट्स अज्यूम दिस कॉस्ट इज 100 रुपीज. मैं सिर्फ एग्जांपल से समझा रहा हूँ कि इंजीनियरिंग टीम ने कैसे कंप्यूट किया था. और लेट्स अज्यूम दिस इज 1 मंथ. तो ये टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? दिस इंटू 20 और ये कितनी हो गई? दिस इंटू अगेन 20. सो दिस इज व्हाट इज गिवन टू यू इन दिस. तो जो 150 करोड़ है कैसे आया? जैसे 2000 आया ऐसे 150 करोड़ से आया हुआ है. और ये फेज 1 का 15 मंथ कैसे आया? जैसे 20 मंथ आया. ऑफ कोर्स ये हमें नहीं करना, बट आई थिंक बिकॉज वी अंडरस्टूड दिस फ्रॉम देम, सो दैट्स व्हाई it's okay for you to understand this if this comes. p computation कैसे हुआ? Any doubt in this? ठीक है. Now if you also understand ये कैसे आया, which is 101 months, ठीक है, तो ये भी उनके पास एक कॉस्टिंग शीट थी. So which means कि 1 किलोमीटर लैंड के ऊपर एट अ गिवन हाइट बनाने के लिए so what they will need, how much cement they will need, how much stone they will need, उनके पास ये भी ब्रेकअप था. ठीक है. सो क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए होंगे वो ब्रेकअप है. करेक्ट. और उसका कितना क्वांटिटी चाहिए होता है और उसका प्राइस पर यूनिट कितना है. लेट्स अज्यूम सीमेंट मुझे 10 बैग्स चाहिए होंगे. ठीक है. स्टोन मुझे लेट्स अज्यूम 100 kg स्टोन चाहिए एंड सो ऑन. ठीक है. दिस लिस्ट विल गो ऑन एंड 1 बैग का लेट्स अज्यूम प्राइस है 10 रुपीज. ठीक है. एंड 1 kg इज लेट्स अज्यूम 5 रुपीज. तो इसकी कॉस्टिंग कितनी हो गई? 10 into 10 and then this is equal to 100 into 5. ऐसे करते 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 जो यहाँ पे जो टोटल कॉस्ट आएगा, लेट्स assume यही दो चीजें चाहिए मुझे. जो टोटल कॉस्ट है तो ये पर किलोमीटर कॉस्ट इज विच इज दिस. In this tender, is it escalation is included?
वो एस्केलेशन हमने डलवाया ना। इंडेक्स, सॉरी, सॉरी, इंडेक्स, कौन सा इंडेक्स, एस्केलेशन बोल रहे हो इन टर्म्स ऑफ द प्राइसिंग वाला? because it will affect the costing part of us, ना these. एस्केलेशन इंडेक्स आप प्राइसिंग वाला बोल रहे हो, कौन सा बोल रहे हो? नहीं नहीं, कॉस्टिंग वाला, जो प्राइस मान रॉ लो मटेरियल उसको। का यही बोल रहा हूँ ना, यस जैसे ये यस, जो हाँ हाँ। सीमेंट का बैग है ये अगले साल हो सकता है 11 का हो, यही Because बोल रहे हो ना? normally it they mention that the price index should be given at that, because that will impact the costing part. नहीं, सो प्राइस इंडेक्स आरबीआई बहुत सारी इंडेक्स चीजों के का थ्रू होता गवर्न है। होते हैं ना ये वैल्यूज। सो if if आप ये, if it is more than, if the execution of any project is beyond 1 year, the RBI index is will be applied to that. इंडेक्स टू दिस इनपुट कॉस्ट, करेक्ट? Yes. हाँ। सो व्हाट वी डिड, ये जो इंजीनियरिंग टीम ने दिया था वो ये है, विदाउट एनी इंडेक्स। ठीक है। फिर टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो वो टेंडर है उसमें एक इंडेक्स डिफाइन था, उसमें एक इंडेक्स डिफाइन था। ठीक है, लेट्स assume that index defined is 5%। ठीक है, वो इंडेक्स यहाँ पे लगाया गया। ये दीपक एक्चुअली में दिस इज नॉट एन इंडियन डील। ठीक है। सो सिंगापुर में कैसे होता है कि बिकॉज टू इंश्योर अ क्वालिटी स्टैंडर्ड, जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा ना, वो सीमेंट है या जो भी रॉ मटेरियल चाहिए होगा, वो अपनी मर्जी से कहीं से नहीं खरीद सकता। एक डिफाइंड वेंडर होगा। ठीक है, जो गवर्नमेंट डिफाइन करती है, आपको रॉ मटेरियल उसी से खरीदना पड़ेगा एट अ प्राइस डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है। सो इट इज नॉट कि आपको एक रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया और आपने घटिया सीमेंट डाल दिया उसके अंदर, या लो क्वालिटी सीमेंट डाल दिया। ठीक है, दैट इज नॉट व्हाट हैपेंस इन दीज कंट्रीज। सो यू हैव टू No no बाय no, द it means सीमेंट ऑफ अ In डिफाइंड India, क्वालिटी फ्रॉम द डिफाइंड वेंडर। ठीक है, तो हाँ, इसीलिए जो इंडेक्स है ना, जो इंडेक्स है वो भी डिफाइन किया हुआ है कि आप जो उस वेंडर से सीमेंट खरीदेंगे उसका प्राइस हर साल 5% पे बढ़ता जाएगा। और वो प्राइस को यहाँ पे इसको एक्सट्रापोलेट कर लेते हैं। सो लेट्स अज्यूम दिस बिकम्स 1 प्लस 0.05। This is what will happen. but in Similarly, Indian case it is also defined the agreed vendor list with which you can buy. which you can buy, correct? वहाँ पे you must buy, और कोई No, चॉइस ही नहीं you है। और means you can means the defined list in the tender, you have to buy from them only. If anything you are not getting from the vendor, then you have to get the consent from the client as a side letter to the contract that we are not getting it, and we want a side letter for this vendor list. मोस्ट ऑफ द प्राइवेट कंस्ट्रक्शंस में होता है, जो गवर्नमेंट के जो रोड कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह होते हैं उसमें तो मैंने नहीं देखा है, एटलीस्ट इंडिया में। ठीक है, वहां पे आपकी दैट इज वेयर द क्वालिटी ऑफ दीज गेट्स इम्पैक्टेड, करेक्ट? सो जो आप बोल रहे हो वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स में होता है। ठीक है, कि ऐसे कर लो, एटलीस्ट नथिंग आई हैव सीन इन द गवर्नमेंट साइड, बट ठीक है, द स्पिरिट इज सेम, द मीनिंग इज सेम, वेयर वी आर सेइंग कि टू इंश्योर कि आप क्वालिटी को compromise, so quality of the raw material is not compromised. We are saying that you need to buy these specified whatever is the raw material from these vendor, so that you are not able to compromise on the quality of the raw material। and जिस vendor से आप खरीदोगे वो vendor of course उसके authorized panel पे होगा, which means उस vendor से आप possibility नहीं है कि uh, uh, आप उससे you're able to influence him and able to get something which is not right। वो सब नहीं हो पाता है। ठीक है, सो वही चीज है, अगर आपने इंडिया में देखी है ऑन द गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट विच आई हैव नॉट सीन, अगर देखा तो वही चीज यहाँ पे। ठीक है। सिमिलरली व्हाट वी डिड, हमने इसमें भी बफर ऐड करवाया था मंथ्स में। ठीक है, सो लेट्स अज्यूम द अच्छा, बिफोर आई गो टू मंथ, एनी डाउट इन कॉस्ट पार्ट बिफोर आई गो टू टाइमिंग पार्ट? हैज एवरीबॉडी अंडरस्टूड कि ये जो डील है इसमें ये 15 मंथ
और ये 150 करोड़ कैसे निकाला गया? How did the engineering team came to these numbers? Any questions on this? Yes, in this 150 crores, engineering team would have been considered the quality standards what they want in Singapore in the, because Yes. in every Quality standards, height, dimensions, specific सब consider करके वो ये costing आई है. Quality standard तो बहुत important है ना, because you can create a 1 kilometer stretch at different pricing basis, a different quality standard. So that is why ये जो quality है, पहले raw material की pricing को freeze कर दिया, और raw material की जो quality है वो इस pricing के अंदर आ गई, and फिर यहाँ से let's assume यहाँ पे construction cost डालते हैं. अब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी आप उस क्वालिटी का करना चाहोगे जो डिफाइंड है, तो वो सारा क्वालिटी यहाँ प्राइसिंग में कॉस्ट शीट में आ गया, जिसकी से फिर यहाँ पे आगे गया. जो आंसर इज यस, जो आप पूछ रहे हो आंसर इज दे हैव कंसीडर्ड द क्वालिटी, द क्वालिटी स्टैंडर्ड गिवन बाय द गवर्नमेंट, वही आपने लिए. And the length is also specified by the government. The total length is defined by the government, not the bifurcation कि उसको phase 1 and phase 2 is done by the engineering team. So the way it was done कि गवर्नमेंट ने बोला था कि ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, that's it. यहाँ से लेकर यहाँ तक टोल बनना है, बस. This is what it says. इतनी हाइट पे बनेगा, इतनी विड्थ पे बनेगा, इस क्वालिटी का बनेगा, इतने पिलर्स होंगे, ये सब गवर्नमेंट ने डिफाइन कर दिया. बट इसका फेज 1 क्या है और फेज 2 क्या है वो गवर्नमेंट ने नहीं, वो क्लाइंट की इंजीनियरिंग टीम ने डिफाइन किया था. और उसका लॉजिक मैंने आपको बताया, क्योंकि फेज 1 को उन्होंने लैंड का कर दिया, फेज 2 को उन्होंने सी का कर दिया. Okay. टोटल 39 किलोमीटर ऑड का ये था, 39 पॉइंट समथिंग था, बट रफ फिगर लेके चलते हैं. सो 39-37 किलोमीटर के आसपास का ये स्ट्रेच था. Any questions यहाँ पर? So I think one thing which is very important for you to understand, every number which is given in this case, be whether it is given by the client, whether it's as a IB investment, as a modeling team, you need to be thorough, clear as how that number is computed. I don't know how many of you looking this case study or this modeling from an entry perspective, but honestly, this is something which you're able to pull it off. As I said yesterday, as I said at the beginning of the session, we decided a couple of sessions earlier where we discuss, do you want to do this advanced piece or not? I told you that there is possibility that some may be able to pull it off, some may not be able to pull it off. So just keep that in mind. Okay. But if you're able to pull it off well, then you can put this in your resume. Okay, that because this is that kind of a modeling which is not easy to see in the markets. And then of course when you're able to pull it off and you're able to put it in your resume, then of course the interview will start, especially if somebody on the other side of the table is also from the modeling on the valuation side. Then they can start throwing some questions to you. You should be able to handle that. If you're able to handle those questions and able to give that vibes or probably impression that you actually did this. So this is what it makes an impact. And then even though you might be fresher from a resume perspective, from this industry, from the segment perspective, you stand out yourself from other candidates, and that's what probably puts you in a better position to get either to the next round or probably to get to the next process of the hiring. Okay, so keep that in mind. इसलिए ensure your notes are pretty strong. जो भी मैं समझा रहा हूँ आप अच्छे से नोट करें. जो नहीं समझ आ रहा है, लॉजिकल नहीं लग रहा है, पूछते जाओ, बार बार पूछते जाओ. Do not let any number go which you have not understood, or even if you understood but you are not getting convinced by the logics of this or the computation methodology. Okay, so
No need to hesitate to ask any part. No need to hesitate, challenge any part. ठीक है. हाँ जी. So जो मैंने yellow में highlight किया, any questions on these numbers? I have a question on 15 months, whether we have considered the climatic conditions has been considered. Yeah, मैं वही बता रहा था आपको कि बफर वाला पार्ट. So what we did, जो इंजीनियरिंग टीम ने हमें दिया था, बेस टाइमिंग दिया था. So what we did, we asked from them कि based on previous experience, how much is the average delay or preponement happens. ठीक है. So the numbers that they gave us, कि जनरली इन दैट इंडस्ट्री और बेसिस जिस एरिया पे बनता है उसका क्लाइमेट कंडीशन, उसका ट्रैफिक, उस सब चीजें देख के the generally the average delay or वो the numbers which were given to us, let's say hypothetically, again I am not sharing this actual number, is plus. ये प्लस और माइनस का आपको बताता हूँ क्या लॉजिक होता है इंजीनियरिंग में. सो प्लस 1.7 months is what we will give it. So ये प्लस है It's the tolerance. 7 months for given. अगर ये माइनस होता तो यानी प्रीपोनमेंट हो जाता है, अगर प्लस होता है तो डिले हो जाता है. सो ऑन एवरेज 1.7 months is what they told us की एवरेज है. He bases the historical kind of in segment that they've seen into similar weather or similar kind of in country or a city. ठीक है. The engineering team believes 1.71 का. तो so what we did, हमने वो बफर जो है उसमें ऐड कर दिया टोटल टाइम. सो जो अभी देख रहे हैं 15 months, दीपक, दिस इज आफ्टर एडिंग दैट बफर. Okay, and in the tender it is mentioned that any preponement will attract a bonus and any postponing delaying will वो attract implied है. नहीं, ऐसा कुछ नहीं लिखा है, बट वो implied है. क्यों implied है वो liquidated damages. नहीं, ऐसा nothing which is mentioned explicitly, but it is implied by the nature of the BOT terms. So what does it mean? So if I can erase this. So yeah. So कल हमने डिस्कस किया था ये BOT मॉडल पे बनेगा और ये जो स्टार्ट होगा 16 में स्टार्ट होगा और एंड होगा 24 में. अब देखो आपके पास ये टाइमलाइन डिफाइंड है. ठीक है. दिस इज नॉट गोइंग टू चेंज बिकॉज दिस इज डिफाइंड इन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. अब आपने बिल्डिंग जब यहाँ से स्टार्ट किया, अगर आपने इसको जितना लेट करोगे उतना रेवेन्यू पीरियड आपका कम हो जाएगा, विच इज ऑटोमेटिकली इम्प्लाइड पेनल्टी ऑन यू. और जितना जल्दी इसको कंप्लीट कर दोगे उतना बड़ा आपका रेवेन्यू पीरियड हो जाएगा. No, that's okay, but that strategically is the cost and the bonus. That is the cost and the bonus or incentive. this is implied, but in some of the cases it happens that a statutory authority wants that we want to be completed by 18 apart from these delays and all that. You will lose this revenue. They will also put some damages on account of delay. नहीं, यहाँ कोई जरूरत नहीं. You cannot go कि एक साल में हम I'll do the operations and all that. It can happen, but जो requirement है गवर्नमेंट का, that should also be met. नहीं, यहाँ पे कोई नहीं है. तो BOT ऑटोमेटिकली टेक्स केयर, व्हिच आई सेड. सो यही इंसेंटिव है, यही आपके लिए पेनल्टी है. आपके लिए ऑटोमेटिकली इंसेंटिव है कि आप जल्दी से जल्दी इस कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करें, बिकॉज आप जितना देर से डिले करेंगे उतना रेवेन्यू लॉस होता जाएगा आपका, एंड दैट इज इम्प्लाइड मीन्स आपके ऊपर पेनल्टी है. अपार्ट फ्रॉम दिस नथिंग एडिशनल पेनल्टी और इंसेंटिव व्हिच इज देयर. Any other doubt on? And the clearances from statutory authority the client will take. No, everything will be given to you as a part of, and you will get a bid. You will win the bid, and within those, once you win the bid, you have to deposit certain amount, and within that is a statutory part है, but समझ लो
So once you win the bid, let's assume आज आपको winning bid का letter मिलता है. So today you win the bid. So within 10 days you have to deposit an X amount. The moment you deposit an X amount, within 30 days you get all the approvals given by the government to you. So you get all the approvals from the government, and then you start your construction. Okay. So like here, the total length is defined above the land, that is 20 kilometers. So in the question, it will be defined. नहीं समझा, क्वेश्चन नहीं समझा, दोबारा बोलो. सर जैसे इसमें आपने लिखा है ना, टोटल लेंथ अबव द लैंड इज दैट इज 20 किलोमीटर्स, एक एग्जांपल दिया है आपने, तो ये हाँ, क्वेश्चन पे हमको मिलेगा, उसके हिसाब से हमने कैलकुलेट किया है, तो ये क्वेश्चन में मिलेगा हमें कि जो टोटल लेंथ है अबव द लैंड वो 20 किलोमीटर से है, जो भी है. वो जो गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकेशंस दी थी उसके अंदर था. अच्छा, उसमें मेंशन होगा मतलब. हाँ, ऑफ कोर्स मेंशन होगा ना कि कौन सी जगह से कौन सी जगह पे बनाना है, कितना लैंड के ऊपर है, कितना सी के ऊपर है, क्या हाइट है, वो सब ये कंस्ट्रक्शन डायमेंशन से सब दे रखी होती है ना. उसके अकॉर्डिंग हम लोग कॉस्ट और मंथ्स जो है कैलकुलेट कर लेंगे. हमने नहीं किया, क्लाइंट की इंजीनियरिंग टीम ने किया. हमने वो समझा कैसे हम्म. बनता है और वो मैंने आपको समझा, उसके ऊपर हमने कुछ फाइनेंशियल लॉजिक्स ऐड किए, वो बताया. ठीक है सर. ओके. एज ए फाइनेंशियल एनालिस्ट आपको तो ना पता कंस्ट्रक्शन कैसे होती है और कंस्ट्रक्शन कॉस्टिंग कैसे होगी. तो मेन वो कंस्ट्रक्शन बट टीम ही करेगी. हाँ, हाँ, तो वो करा उन्होंने, बट वी स्टिल अंडरस्टूड किया इसमें क्या है, इसमें इज देयर एनी पीस दैट वी नीड टू मॉडिफाई फ्रॉम फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव. जो हमने बात की, एक तो हमने इसमें इन्फ्लेशन एक्सीलरेशन डाला, ठीक है. दूसरा हमने डिलेज का बफर डाला. ये दो एडिशन है जो हमने करवाए. ओके सर. One more thing, if yes, it is been evaluated by engineering team of client, anything miss out will be responsibility of client. ऑफ कोर्स हर नंबर के ऊपर अकाउंटेबिलिटी डिफाइन होती है. जो भी नंबर इसमें कैलकुलेट होगा, आप नहीं, देखो जब just मॉडल it स्टार्ट has करोगे. to यस, be a यस, part of the यस. tender. टेंडर नहीं होगा, मेरे और क्लाइंट के बीच में जो एग्रीमेंट होगा, यानी इन्वेस्टमेंट बैंकर और क्लाइंट के बीच में जो एग्रीमेंट होगा उसमें लिखा होगा. टेंडर का क्या लेना देना, टेंडर तो गवर्नमेंट और क्लाइंट के बीच में. ये इसको चैलेंज कौन Okay, करेगा? okay, okay, इस नंबर को okay, okay. गवर्नमेंट थोड़ा चैलेंज करेगी. नहीं नहीं, इस नंबर को तो that's क्लाइंट चैलेंज करेगा कि आपने मेरा हम्म, कोई एक नंबर गलत, जैसे मैंने मॉडल बना दिया, ठीक है. मॉडल बनाने के बाद उस मॉडल में कुछ गलत नंबर में डाल देता हूँ, तो वो चैलेंज कौन करेगा? गवर्नमेंट हो ना मेरे पास आएगी. क्लाइंट मेरे पास आएगा कि अरे निशांत क्या खराब मॉडल बना दिया, मेरे को लॉस हो गया, या मुझे मुझे मेरी डील हाथ से चली. yes, not government's client. करेक्ट, करेक्ट. तो मेरे और क्लाइंट के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, और अभी आप देखो जब मॉडल बनेगा तो उस मॉडल में क्लियरली होगा कौन सा नंबर क्लाइंट ने दिया, कौन सा नंबर मैंने कंप्यूट किया. एनीथिंग एल्स? Last time, anything else in this? ठीक है, so in case no question, so similarly phase 2 का भी कॉस्टिंग एंड टाइमिंग निकल जाएगा. देख लीजिए उसमें कोई डाउट हो तो. सेम मेथोलॉजी से उन्होंने हमें फेज 2 का कॉस्टिंग दिया.
Okay. So any doubt in first para, because I will then close the first para, everything, numbers and concept. Any question for the first para? Okay. Now this, I explained this briefly yesterday. So as I told you, the one of the prerequisite or one of the eligibility criteria for client or for anybody to bid into that contract, that you need to have incorporated entity in Singapore, or let's assume in India in this example. मैंने इसको Indian context में change कर दिया, ठीक है. So what does this mean? मुझे इंडिया में एक कंपनी होनी चाहिए, ठीक है, incorporated in India. At least the entity should be incorporated in India. And as I explained yesterday, when we consulted the legal team of that country, ठीक है, then we were informed कि वहां पे incorporation करने में जो cost and time है वो relatively on the higher side है, ठीक है. And the alternative that were proposed by us to the client is, rather than opening a company, let's float an SPV. और वो SPV कल मैंने आपको बताया था, स्पेशल पर्पस व्हीकल. उसको उसको सेटअप करना और रजिस्ट्रेशन कराना रिलेटिवली लेस कॉस्टली और लेस टाइम कंज्यूमिंग था. सो दैट इज व्हाई फ्रॉम लीगल पर्सपेक्टिव जो एंटिटी क्रिएट करी जाएगी वो एसपीवी होगी, एंड दैट एसपीवी वुड बी व्हिच इज XYZ इंफ्रा. ठीक है. लास्ट टाइम एनी डाउट इन फर्स्ट पैरा? Hello, am I audible? Yes, sir. Okay. चलिए. So now let's come to the second para. So मेरा टोटल कॉस्ट कितना होगा? प्रोजेक्टेड एस्टिमेटेड कॉस्ट इज 210 करोड़. ठीक है, 150 प्लस 60, सो टोटल मेरा 210 कॉस्ट हो गया. ठीक है. सेकंड पैरा पढ़ो एक बार ध्यान से. आउट ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट 125 करोड़ वुड बी फंडेड बाय डेट, इंटरेस्ट ऑन डेट, ब्ला ब्ला ब्ला. ठीक है, जिसमें से मैं अभी आपको ये नहीं सिखाऊंगा. ठीक है, दिस इज नॉट व्हाट वी विल डिस्कस टुडे. ठीक है, तो इसको हटा देते हैं. सेकंड पैरा में ना, हाँ जी, अब मुझे आप बताइए. सो नाउ यू पार्ट ऑफ द मॉडलिंग टीम. नाउ यू हैव टू टेल मी कि अगर टोटल कॉस्ट 210 आ गया है, हाउ विल डिसाइड कितना डेट होना चाहिए, कितना इक्विटी होना चाहिए. टेक अ मिनट or probably little more than a minute if you need that. Think and tell me, as a financial analyst, how would you decide that out of this total cost, which is 210 rupees, how would you decide the breakup ki kitna debt, kitna equity? Think and then answer. Anjay. So we were provided in the 40. detail that a loan of amount would be provided about 125 crore, I guess. In what detail? ये तो मैंने आपको दिया यार, बट रियल वर्ल्ड में ये नंबर नहीं होता. ये तो मैंने आपको जस्ट for you to stay in the framework. So this number were not given by the government. So now आपने 210 करोड़ निकाल लिया कि इस चौल को बनाने में टोटल 210 का खर्चा होगा. अब आपको फंडिंग डिसाइड करनी है कि 210 करोड़ में कितना डेट से आएगा, कितना इक्विटी से आएगा. ये गवर्नमेंट थोड़ा बताएगी और ना ये क्लाइंट बताएगा आपको. क्लाइंट आपसे एक्सपेक्ट करेगा, आप फाइनेंशियल एक्सपर्ट हो ना. 60-40.
60-40 और 60-40 का लॉजिक बताओ जरा मुझे। हाँ जी, 60-40 का लॉजिक। 125 we have taken it from the total cost of the project is 210 na? Yeah, 210, correct. Okay, and out of that 125 we are getting the from the debt. नहीं दीपक, ये हमें, मैं यही तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, 210 में से कितना डेट में से लो, कितना इक्विटी में। अभी आप ये 125 ये जो भी था, ये इसको भूल जाओ, ये क्या है, ये 125 को भूल जाओ अभी। ये इन्फॉर्मेशन अब आपको निकालनी है, ये इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे गिवन है 125। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि टोटल 210 कॉस्ट है, इसमें से कितना डेट से फंड करना आप सजेस्ट करोगे, कितना इक्विटी से फंड करना सजेस्ट करोगे आप क्लाइंट को। Then what is the cost of capital? What is the cost of capital हाँ तो सर associated? उसके बेसिस पे निकालना पड़ेगा। हाँ, तो जो भी नंबर एज्यूम करना है करके मुझे बताओ ना कि ये लॉजिक और ये ब्रेकअप है। दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। नीड एनी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मी, लेट मी नो, आई कैन गिव यू द इन्फॉर्मेशन। सर इंटरेस्ट रेट 15% ही लेंगे। अगर आपको चाहिए तो मैं दे देता हूँ। लोन का इंटरेस्ट रेट, लोन का मार्केट में इंटरेस्ट रेट जो चल रहा है वो 15% है। लो, अगर आपको चाहिए तो ले लो, और कुछ चाहिए तो मुझसे पूछ लो। आई एम ए क्लाइंट, करेक्ट? यू आर अ पार्ट ऑफ द मॉडलिंग टीम। You need to give me this breakup. If you need any information, let me know. 100% इक्विटी से ले लेगा सर। Okay. और क्या लॉजिक है फजलूर इसका 100% इक्विटी? स्टार्टअप कंपनी जब भी आएगी प्राइवेट इक्विटी से ही रेज करना स्टार्ट करेगी। अच्छा, ठीक है, चलिए लिख दिया मैंने आपका लॉजिक। विल कम टू दिस। हाँ जी, और कोई? सही से 100% प्राइवेट इक्विटी। हाँ जी, और कोई? कोई नहीं है जो कोई लॉजिक बता सके क्या ब्रेकअप होना चाहिए? इवन इफ इट इज रॉन्ग, दैट्स ओके, यू कांट कम आउट विद एनी लॉजिक। I'm not sure of the percentage, but I think that we can go for debt as it is a government project. So the company might think on going for debt. हाउ मच, दैट इज द क्वेश्चन ना। अब क्वेश्चन ही चेंज कर दिया आपने। हाँ जी मैम। नहीं, हाँ जी, और कोई? कम ऑन गाइस, कुछ तो लॉजिक, कुछ तो ब्रेकअप दोगे आप। क्या 50-50? 50-50 क्यों 50-50? क्या, क्योंकि हमको जो वहां पे क्वेश्चन में प्रोवाइड था कि इक्विटी की कॉस्ट 21% है, तो इसकी कॉस्ट 15% है। तो 50-50 कहाँ से आ गया? वर्कआउट करना पड़ेगा कितने का। तो वही वर्कआउट तो मैंने करके मुझे 50-50 बताया ना। एक मिनट दीपक, एक मिनट। हाँ श्रीकांत, 50-50 कैसे आया ये? क्या नहीं आइडिया अभी। ठीक है, हाँ दीपक। Do we have to go for this NPV calculation? मुझे नहीं पता, मैं तो क्लाइंट हूँ, आपको डिसाइड करना है क्या करना है। अभी मैं ट्रेनर नहीं हूँ, एटलीस्ट 5 मिनट के लिए। आप एनपीवी करनी है, जो करना है मुझे बताओ। कुछ नंबर मुझसे चाहिए तो मैं दे देता हूँ आपको। आप मुझे ब्रेकअप बताओ।
Deepak, on this? हाँ दीपक, shall I wait for you to come back on this, or ये नहीं नहीं है? Are you calculating anything? No, we can move ahead because I thought. Anybody else who can give this breakup logic, even if it's wrong, that's okay. ये हमने किया है past में. That is why I'm again and again asking you. In some shape and form, we've done this in previous classes. ठीक है. Hmm, 60/40 because cost of debt is less than cost of equity, so we can take more of debt. Okay, so but 60/40 कहाँ से आया? 70/30 क्यों नहीं है? वो 80/20 क्यों नहीं है? 90/10 क्यों नहीं है? We might need to consider other ratios as well of the company, that how much company एग्जिस्ट ही नहीं equity. करती. कंपनी कोई रेशियो नहीं है. Probably startup, but that's what the problem is. अगर स्टार्टअप में होता है क्वेश्चन आपको कभी आता ही नहीं. I told you ना कि स्टार्टअप में बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम हो जाती है. So ऐसा कोई रेशियो एग्जिस्ट नहीं करता है. It's a company which is yet to be started. So all ratios are zero. अब बताओ क्या कैसे आएगा 60/40 या जो भी ब्रेकअप आप चूज करते हो. हाँ, मैं आपको इतना बता सकता हूँ, लोन इंटरेस्ट रेट 15% है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 21% है, वो आपको बता दिया गया है. और कुछ चाहिए तो मैं मोर देन हैप्पी टू गिव. इफ यू नीड एनी अदर रेशियो, द आंसर इज दिस इज अ कंपनी व्हिच इज येट टू बी स्टार्टेड. ऑल रेशियो स्टैंड जीरो एज ऑफ टुडे. No, that was my logic for that. You can go ahead. लॉजिक स्टार्टिंग पार्ट करेक्ट है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज्यादा है, कॉस्ट ऑफ डेट कम है, वो तो फैक्चुअल पॉइंट ही है. पर उससे आप 60/40 पे कैसे है, वो पीस मुझे अभी भी नहीं. We have arrived at 60/40 by considering 100 and out of 210, 125 is from debt considering because we cannot. 125 तो निकालना है हमारे को नंबर. तो 125 कैसे निकाला वो नहीं पूछ रहा मैं आपको. मैं पूछ रहा हूँ 125 भूल जाओ. क्वेश्चन में आपको 125 गिवन ही नहीं है. लेट्स अज्यूम जो मैं और क्लाइंट, आप और मैं, सो आई एम अ क्लाइंट एंड योर मॉडलिंग टीम, वी आर डिस्कसिंग. You only know as of now is total cost is 210 crores. Now out of 210, how much you are proposing or suggesting me to fund through debt or equity is the question, and you don't know 125 as of now. What you know is कि लोन का इंटरेस्ट रेट ये है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 21%. ये पता है आपको. 125 वाली चीज को भूल जाओ. आपके पास ये इंफॉर्मेशन है जो येलो में हाईलाइट है. अब ब्रेकअप बताओ, कितना डेट कितना इक्विटी. सर 80 to 20%. क्यों? मतलब as you told in the previous classes that the level of debt is decided by the company on the basis of the fixed income they are earning. So I think बट यहाँ more. पे कुछ अर्न नहीं कर रही, वो जीरो है. तो नहीं मतलब आगे तो अर्न करेंगे. अभी कैसे कैलकुलेट करूं?  अभी चाहिए ना मुझे नंबर. तो 125 में निकालना है, 125 में 20% 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
कई ये सब क्वेश्चन ना बहुत आसान हो जाते हैं आंसर करने के लिए रनिंग कंपनी होती तो आई होप यू आर स्टार्टिंग रियलाइजिंग कि what we have picked up and how complicated this will get. हर एक क्वेश्चन में आप ऐसे फंस जाओगे जाके अब, क्योंकि जो भी आपने पढ़ा है या जो भी आप आसानी से देखते हो कैलकुलेशन, आसानी से मतलब जो भी आप कैलकुलेशन देखते हो उसमें बहुत छोटा सा अच्छा सा पार्ट होता है कि उसके पुराने ट्रेंड को आप देख लेते हो, and it helps you to arrive some fair bit of logic to this. Okay, we can try and use this, which is a very big problem for this entire startup models. तो कुछ होता ही नहीं हमारे पास देखने के लिए. सो यू राइट कृतिका, अगर मेरे पास एक अर्निंग होती पास्ट की तो उस अर्निंग से मैं देख लेता कि अच्छा इसकी इतनी अर्निंग है तो इसका इतना ईएमआई वो पे कर सकता है. करेक्ट, दैट इज व्हाट यू वांट टू से. दिस इज व्हाट वी डिस्कस व्हेन वी हैड अ डेट इक्विटी रेशियो Yes, डिस्कशन. sir. बट यहाँ कुछ है नहीं ना, इसीलिए तो ये कॉम्प्लिकेटेड है मामला. Last time, anybody else, any other logic? Then the company will go for private equity, sir, I think, because debt तो अगर unsecured loan तो मिलेगा नहीं. अच्छा, आपने ये भी कंक्लूड कर लिया कि लोन मिलेगा नहीं, और ऐसा नहीं क्यों मतलब कंक्लूड करा unsecured, आपने? अगर आप बोल रहे हो ना कि कुछ नहीं है, कंपनी स्टार्टअप है तो. ठीक है, तो स्टार्टअप है तो ये कैसे कंक्लूड करा इसको लोन नहीं मिलेगा? नहीं, I said unsecured नहीं मिलेगा. चलो ठीक है, ऐसा क्यों कंक्लूड कर लिया आपने कि अनसिक्योर्ड नहीं मिलेगा? What's the logic or the Sir, basis for you to conclude that? because कंपनी की अभी कोई प्रीवियस वो है नहीं ना उसके पास फाइनेंशियल्स. तो अनसिक्योर्ड लोन नहीं मिलेगा, ऐसा होता है? आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है, कुछ नहीं है, आपको फर्स्ट टाइम जब आप क्रेडिट कार्ड लेने जाते हो तो आपको क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता है क्या? क्रेडिट कार्ड भी तो अनसिक्योर्ड लोन ही होता है. आफ्टर सम टाइम मिलता है सर. सम टाइम ऑफ व्हाट? मतलब आफ्टर आफ्टर व्हाट? एटलीस्ट आफ्टर 3 months of working. 3 months ऑफ वर्किंग? क्या बात करो मैम, आप फर्स्ट डे कंपनी में ज्वाइन करते हो, फर्स्ट डे ही आपको आपका सैलरी अकाउंट खोलने के साथ साथ क्रेडिट कार्ड चिपका देते हैं वो लोग. जिस दिन आप ज्वाइनिंग लेटर, अगर जिस दिन आप हम जिस दिन आप ज्वाइनिंग प्रैक्टिकल फॉर्मेलिटीज पूरी करते हो उसी दिन क्रेडिट कार्ड मिल जाता है आपको. हाँ दीपक बोलो. if we are going in a practical thought, this company cannot bid for this कैन contract. नॉट? क्यों? It is a startup company. There for such a work there should be a credentials, which you are saying that the startup company is not carrying. No, I never said that. The only requirement is you need to be incorporated in that particular country, which we have, which that criteria has already been complied with, and I told you that we'll float SPV. That's it. That's the only criteria. The criteria is not what you and me will define. The criteria has been defined by the government, and we're complying with that. तो गवर्नमेंट ने कहीं पे भी ऐसा क्राइटेरिया नहीं दिया है आपको 50 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, 10 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, ऐसा कहीं नहीं लिखा. Only criteria which is mentioned, you need to be incorporated in that particular country, which we are able to do that, correct? And there's an escrow funding that will happen, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा. यही दो क्राइटेरिया है, उसके अलावा कोई क्राइटेरिया नहीं है. सो व्हाट मेड यू बिलीव और कंक्लूड कि ये बिड नहीं कर पाए? Actually, this was not clear, no? That सॉरी. only incorporation is required. Yes, only incorporation is required and escrow funding is required. That is the only two piece which is required. अभी के लिए escrow को हटा देते हैं, only incorporation is required. That's it. You incorporate, you're eligible to bid. हाँ जी.
Last time, anybody else? Chalo. Now, if no, so now, so if I'm also part of this modeling team, now what I would suggest is this. ये आई थिंक पारुल ने ऑलरेडी बोल दिया था कि जो लोन का कॉस्ट है यानी कॉस्ट ऑफ डेट जो है इज लोअर देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, वो तो आप देख भी सकते हैं स्क्रीन पे, करेक्ट, 21% वीजा 15%. So is this right? Can I write this? Sorry. Is this okay? Any question on this? The cost of debt is less than cost of equity. I know. That's okay. Now, After your full answer, the question will come. of course, मैं उसी specific part की बात पूछ रहा हूँ. So now, what I will say, okay, ये कंपनी के पास, ठीक है, अगर कॉन्ट्रैक्ट विन कर जाते हैं लोग, ठीक है, so what I will do, I will assess loan raising capacity of the company if they win the bid. इस स्लाइड में कोई डाउट? So if this company win the bid, how much loan they can raise from that market or from that country or any of the lender in that country is what I will assess now. ठीक है, so उस कंट्री में जो लेंडर्स हैं, ठीक है, we approach them, ठीक है, that our client is planning for bidding into this and we're not asking for any loan from you as of today. These are our details. This is parent, this is company details, okay, this is what the legal structure would be, okay, all those information from an incorporation perspective and as well as the parent company perspective have been shared. And if we win the bid, this is important, okay, and this bid is by your government only, so it's not something which is fishy or we're trying to do in some other country. Okay, if this contract is given by your government, okay, how much loan you're willing to give us and at what rate? This is what we did. So technically ये भी नहीं था मेरे पास, ये दो नंबर भी नहीं थे जब हमने एनालिसिस स्टार्ट किया. मुझे सिर्फ ये पता था, so मुझे ये भी नहीं पता था, मुझे सिर्फ ये पता था कि लॉजिकली कॉस्ट ऑफ डेट हैज टू बी लोअर देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी. इस बेसिस पे हमने स्टार्ट किया है. कोई डाउट यहाँ तक बिफोर आई मूव फॉरवर्ड? ठीक है. So now, suppose we have gone to banks, bank कह लो, lender कह लो. But across the globe, this is a universal phenomena. What? The cost of debt or cost of equity. There is Has to debt be. minus equity cost as negative. Delta is negative always. Debt minus equity तो पूछ रहे हो कि बता रहे हो? ये पूछ रहा हूँ मैं. Yes, it has to be ना. It has to be. आप मुझे बता दो if you can think of any scenario जहाँ पे आपको reverse नहीं लगता है. this is obvious basically. Yeah. अगर ये नहीं है तो आप फाइनेंशियल लॉजिक्स में प्ले नहीं कर रहे हो, आप कुछ और गड़बड़ कर रहे हो. No, this aspect, what you are saying, that cost of debt and cost of equity should be greater than the universal accepted phenomena, means the thought कि ऐसा होता ही है. It's not an accepted thought. It's a factual statement based on defined logics.
अगर आपको ये हमने डिस्कस किया था पहले क्लास में, अगर अगर आपको चाहिए मैं दोबारा समझा सकता हूँ क्यों ऐसा होता है। No, means no issue. ठीक है। सो नाउ मैंने बैंक्स या लेंडर्स को बोला और मैंने मैंने 3-4 बैंक्स और लेंडर्स को अप्रोच कर लिया। ठीक है, मैं कौन हूँ जो अप्रोच कर रहा हूँ? ये जो इन्वेस्टमेंट बैंकर है, क्लाइंट के लिए काम कर रहा है, वो अप्रोच करता है। उससे वो दो चीजें मांगता है, क्वांटिटी ऑफ लोन कितना आप दे सकते हो, एंड एट व्हाट इंटरेस्ट रेट, हाउ मच यू कैन गिव अ लोन एंड एट व्हाट इंटरेस्ट रेट। सपोज बैंक ये बोलता है वी कैन गिव यू 120 एट अ रेट ऑफ 15.5, ठीक है। The bank B says we can give you 100 crores at 16% and so on. The other bank says we can give you 130 crores at a rate of again 16% and so on. ठीक है, so let's assume आपके पास ये मिल जाता है। यहां तक कोई डाउट? ये लोन दिया किसी ने नहीं है, बट ये हमें प्रोविजंस मिल गए, नॉट प्रोविजंस मिल गए, ये हमें इंफॉर्मेशन मिल गई है बैंक से that if we win the bid which is given by a government basis our information as a legal status and what is our parent, this is what the lender of the same country is willing to give us if we win the bid. And this of course, all this is caveated as if you win the bid. If you don't win the bid, you this calculation or this goes off. Of course, this is caveated by also on one condition, that bank has a right of not giving you also. तो ये सिर्फ एक information है which they give on a letter saying that कि हम देने के लिए interested हैं। ठीक है, अगर आप 8-10 बैंक से ये लेटर मिल जाता है आपको, सो इट मींस मिलेगा लोन आपको, क्योंकि एक बैंक मना कर देगा, 2 बैंक मना कर देगा, बट मोर और लेस उस कंट्री में, उस मार्केट में, उस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे आप लोन उठा पाओगे मार्केट से, अगर आपको मिल जाए। दिस सेंस इज व्हाट वी हैव गॉट। कितना कितना लोन उठा सकते हो और किस रेट पे, वो सेंस भी हमारे को नंबर्स यहाँ से मिल गए। यहाँ तक कोई डाउट है तो कुछ? ठीक है, तो मेरे पास 210 था। ठीक है, अब इस 210 में से what we wanted from a structuring perspective कि मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम डेट उठाऊंगा। रीजन क्यों मुझे मैक्सिमम डेट चाहिए? टू लोअर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। किसी को डाउट यहाँ तक? क्योंकि जो डेट है वो चीपर सोर्स ऑफ फंड्स है, वो मैंने कंक्लूड करा दिया यहाँ पे जो येलो में है। सो अगर मुझे 210 टोटल पैसा चाहिए, तो मैं ज्यादा से ज्यादा जितना मुझे मिल सकता है उतने ज्यादा से ज्यादा मैं चीपर सोर्स ऑफ फंड्स उठाऊंगा, विच इज डेट, सो दैट माई कॉस्ट ऑफ कैपिटल गोज डाउन। यहाँ तक कोई डाउट? सर अगर इस बेसिस पे होगा तो फिर डेट इक्विटी रेशियो का थ्योरी भी ये हो जाएगा, गलत होगा तो फिर वहां पर। कौन सा डेट इक्विटी रेशियो फजलू? या स्टार्टअप कंपनी अगर ये हो तो डेट इक्विटी रेशियो, डेट इक्विटी से रेज नहीं करेगा, 0:1 होना चाहिए, शुड भी। मैंने कभी बताया ऐसा 0:1 होना चाहिए? तुम्हारी assumption है, तुम्हारा थॉट है। मैंने कहा तुम्हें बोला है, तुमने कहा लिखा हुआ देख लिया कि जहाँ पे एक स्टार्टअप कंपनी है उसका 0:1 होना चाहिए? वहां पर तो बताया गया था कहाँ कि बताया गया अधिकतर था? कहाँ बताया गया था? स्टार्टअप कंपनी जो होगी, जो अधिकतर प्राइवेट इक्विटी से ही रेज करना स्टार्ट करेगी, उसका डेट कहाँ इक्विटी बताया गया रेशियो था? इसमें, कहाँ बताया गया? डेट इक्विटी रेशियो में। मैंने बताया था कि स्टार्टअप कंपनी का डेट रेट 0 होता है, ऐसा बोला था मैंने? हाँ, 0 होता है। जीरो जीरो ही अधिकतर लिया जाता है, डेट इक्विटी रेशियो 0:1 होना चाहिए। मैंने कभी नहीं बोला ऐसा। ठीक है, व्हाट आई वुड हैव सेड इज दिस कि अगर मुझे लोन नहीं मिल रहा है कहीं से, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है और सिर्फ इक्विटी की तरफ जाने का। अगर मुझे लोन मिल रहा है तो मैं क्यों नहीं लूं? अभी तो हमने बैंक से चेक किया ना कि भैया, बैंक से चेक किया ना हमारे को ये इन्फॉर्मेशन पे आप लोन देने के लिए रेडी हो, हाँ या ना, और हाँ तो कौन से रेट पे। अगर मुझे यहाँ से लोन बैंक बोले हम लोन नहीं देंगे आपको, सुनो पूरी बात को,
अगर यहाँ पे सारे बैंक बोलते मैं लोन नहीं दूंगा आपको, ठीक है, I've approached 10-20 banks and everybody says no, will not give you loan before 3 years, before 5 years, then I have no choice but to go into 100% private equity ना. लोन के केस में से एक रनिंग वेल कंपनी है या फिर एक ग्रोथ कंपनी लेने के लिए तैयार होगी। अगर स्टार्टअप कंपनी है तो वो उसका जो है स्टार्टअप आइडिया अभी तक इंट्रोडक्शन स्टेज पर है, वो डेट रेज करना नहीं चाहेगी। मजदूर देखो, अगर आप एक माइंड सेट से रट के कुछ बैठ गए हो और कहोगे इसी को प्रूव करो सही है, तो मैं नहीं कर सकता। आप मुझे यहाँ पे बताओ, यहाँ पे आपको क्या इलॉजिकल लग रहा है? आपके हाथ में गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है कि आप गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट जीत गए हो। सुनो यहाँ पे, अगर आपके पास एक कॉन्ट्रैक्ट है कि आपके पास गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है, आप जीत गए हो, और जीत गए मतलब वो इनकम फिक्स्ड है आपकी, इतना पैसा गवर्नमेंट से आपको मिलने वाला है, और आप बैंक के पास जाते हो, बैंक आपको लोन नहीं देगा इवन इफ स्टार्टअप, और उसी कंट्री के बैंक से लोन ले रहे हो आप। अब आप मुझे बताओ, नहीं मिलेगा आपको लोन? आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का, इंडिया कॉन्ट्रैक्ट में बात करते हैं, आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का एक कॉन्ट्रैक्ट है बहुत बड़ा, ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की वेबसाइट पे भी आ गया, न्यूज़पेपर में आ गया, और आपके पास ऑफिशियल लेटर है सेंट्रल गवर्नमेंट। अब आप एसबीआई के पास जाओगे कि मुझे लोन दे दो, मुझे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करनी है, मैं एक नई कंपनी, बट मुझे प्रोजेक्ट मिल गया है, ये एसबीआई लोन नहीं देगी आपको? देगी सर। तो फिर क्या, कौन से थियोरेटिकल वर्ल्ड में जी रहे हो फिर आप? ये जो क्वेश्चन आप पूछ रहे कैसे एप्लीकेबल है फिर मुझे बताओ। केस 2 अब जो हमने शायद डिस्कशन करी होगी वो ये है, मैं कंपनी में एक अपना खुद का आइडिया बना के लाता हूँ, अब मैं एसबीआई के बताता हूँ, एसबीआई कहेगा भाग जाओ यहाँ से, वो एक अलग चीज है ना। और गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिल जाना इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम मैं अपना खुद का स्टार्टअप में खुद का आइडिया लेके आता हूँ। क्लियर है ये? यस सर। अभी भी तुम्हें Yes, sir, लगता yes. है कि लोन नहीं मिलेगा बैंक से? नहीं सर, मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो यहाँ पे 0 नंबर आ जाता। ये तो हमने चेक कर लिया ना मार्केट से, ये हमारा कोई एजम्पशन नहीं है। ये फजलू जो ये एबीसी के सामने में लिखा है, ये हमारा एजम्पशन नहीं है, ये एक्चुअल हमें लेटर्स मिले बैंक से कि हम लोन दे देंगे अगर आपको ये विन भैया। बट यहाँ पे एक और कीवर्ड था, बैंक स्टिल हैज अ राइट ऑफ नॉट गिविंग लोन, ये भी मैंने आपको बताया, ये कीवर्ड होता है उसके अंदर, लेटर के अंदर। बट अगर मुझे 8-10 बैंक ऐसा लेटर दे रहे हैं कि हाँ हम दे देंगे, जिसमें ये लिखा हुआ है कि 2 कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है, पहला आपको बिड मिलना चाहिए, विन करना चाहिए आपको बिड, ठीक है। दूसरा, उसके बावजूद हमारे पास राइट है कि हम डिसाइड करें अगर आपको लोन नहीं दे रहा तो हम शायद मना भी कर सकते हैं। तब दिस इज नॉट अ फाइनल लेटर कि हम लोन दे देंगे, दिस इज अ प्रोविजनल लेटर। बट अगर 8-10 बैंक मुझे ऐसा लेटर दे रहे हैं तो ये बहुत हायर सेंस है, प्रोबेबिलिटी कि मुझे किसी ना किसी से लोन मिल ही जाएगा जब मेरे को विन हो जाएगा वो कॉन्ट्रैक्ट। एवरी बैंक विल नॉट टर्न बैक एंड से नहीं मैं नहीं दूंगा आपको। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, आपको या किसी को भी। Your question was आ रहा हूँ उस पे, वो भी मैंने करा नहीं। first 3 lines के साथ immediately in a minute tell us the debt equity percentage. So we want a answer. Means this if you have that answer, by seeing those 2 lines, if we can give that resultant that should be this and equity should be this, then that can come up. नहीं, मैंने ये नहीं बोला था, मैंने ये बोला था Because this solution can be done through linear programming and all that by maximizing this. लिनियर प्रोग्रामिंग में नहीं जा रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ, मैंने आपको ये बोला, ये इन्फॉर्मेशन आपको गिवन थी यहाँ पे, ठीक है, और मैंने आपको इंटरेस्ट रेट दे दिया 15%। कुछ और मुझसे पूछना है तो No, you are told interest rate भी नहीं है आपके पास। चलो ठीक है, इंटरेस्ट रेट भी मैंने हटा दिया। बस आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन पूछना है तो बताओ, आप अपनी एजम्पशन या कुछ और लॉजिक लगाना है वो लगा सकते हो, और फिर मुझे बताओ कि क्या नंबर आप प्रपोज करोगे। आई नेवर सेड कि आप कोई और इन्फॉर्मेशन अपनी एजम्पशन नहीं लगा सकते या मुझसे नहीं पूछ सकते।
और वही मैं कर रहा हूँ कि ठीक है, मैं गया इंडस्ट्री में, मैंने चेक किया कि अगर आपको कितना लोन मिल सकता है, तो जब मैं आपको बोलूंगा तो मैं बोलूंगा ये मेरा लॉजिक है। मैंने ये थोड़ा कहा था कि सिर्फ इसी नंबर के बेसिस पे जो लिखा हुआ है इसी से आप मुझे ब्रेकअप बताओ। यू आर फ्री टू ऐड योर assumption एंड लॉजिक्स, करेक्ट? हाँ, आपको वो इलॉजिकल लग रहा है तो आप बताओ कि यार ये तो इलॉजिकल assumption या इलॉजिकल अप्रोच लग रहा है। From where the numbers has came up, this 15, Which 16, 6, numbers? 120, this is your assumptions. No, these are not my assumption. We approached the bank, we gave them our details, and we gave these Where's terms the of contract. information? Where's that information? Where is it? वो मैं करूंगा ना अभी, बैंक के पास जाके पूछूंगा ना उसको, ये मैं प्रपोज कर रहा हूँ ना, I can do this. As an investment banker modeling team, this is what I'm proposing to the client. तो आप पार्ट ऑफ द मॉडलिंग टीम ही हो, करेक्ट? तो आपको ये यही तो पूछा कि अब आप क्या करोगे सिचुएशन में। तो अगर मैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग टीम का हूं और आप क्लाइंट हो, मैं आपको प्रपोज करूंगा, शुड वी अप्रोच द बैंक टू चेक वेदर वी कैन गेट द लोन फ्रॉम द मार्केट और नॉट? If you say yes, go ahead and approach. I will go ahead and approach the client. Sorry, the banks. सर यहाँ स्टार्टअप कंपनी का तो कोई रोल नहीं रहा, तो फिर उसका कोई आइडिया नहीं है। यहाँ पर क्यों सब नहीं है? गवर्नमेंट का ही है, गवर्नमेंट का आइडिया, गवर्नमेंट का बिजनेस है। स्टार्टअप कंपनी एक इम्प्लीमेंट कर रहा है उस आइडिया पर। मतलब समझा नहीं मैं। स्टार्टअप कंपनी का ये आइडिया भी तो नहीं ना है। What does that mean? वो एक दूसरे के बिजनेस को इम्प्लीमेंट कर रहा है। कोर्स के बिजनेस को इम्प्लीमेंट कर रहा है। गवर्नमेंट ने एक टेंडर दिया, उसे उस टेंडर को इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो आइडिया तो इसका ही हो गया ना, गवर्नमेंट का। इसका होगा आइडिया? आइडिया गवर्नमेंट का कैसे हो गया? उसको कैसे बनाना है, कैसे कॉस्टिंग करना है, कैसे कैलकुलेट करना? अभी 500 एप्लीकेंट इसमें बिड करेंगे, तो वो कैसे करोगे? वो आइडिया आपका है कि गवर्नमेंट का? गवर्नमेंट का डायमेंशन नहीं है कि ये चीज बना के देनी है मुझे। वो कैसे बनाऊंगा, कैसे कॉस्टिंग करूंगा, कैसे करूंगा, वो तो मेरा आइडिया है, मतलब क्लाइंट का आइडिया ना, एज एज वो। गवर्नमेंट ने थोड़ा ना कहा कि इतना लोन में ले लो, ये ले लो, वो ले लो। वो कॉस्टिंग सारी आप ही कैलकुलेट कर रहे हो ना। और ये कोई आइडिया नहीं है, ये प्रोडक्ट है कि ये प्रोडक्ट डिलीवर करना है। ये प्रोडक्ट को कैसे डिलीवर करना है, वो आइडिया तो अभी भी आप ही का ही है ना। एनी अदर क्वेश्चन ऑन दिस? जैसे ये बैंक्स में दिया हुआ है ABC करके, तो अगर हम लोग ये सी वाला अगर हम लोग चूज कर लेते हैं कि 130 जो है हमें मिलेगा एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 16%, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। आ रहा हूँ उस पर, आई विल कम टू दैट। इसमें और पार्ट्स ऐड करने बाकी हैं, सो विल कम टू दैट। बट हाँ, उसी को बेसिस बना के आगे चलेंगे। So I और will सर come ना to that. एक बार ये भी बता दीजिएगा, कॉस्ट ऑफ डेब्ट इज हाउ द कॉस्ट ऑफ डेब्ट इज लोअर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ये पहले किया था मनमीत हमने, सो और यही चीज में थोड़ा सा आई वाज लिटिल अपसेट कि जो चीज हम पहले कर कर आ रहे हैं हम उसको भूलते जाएंगे ना, तो इट विल नॉट हेल्प टू मच फ्रॉम लर्निंग प्रोसेस। बट कॉस्ट ऑफ डेट लोअर इसलिए होता है कि जब हम किसी को डेट दे, सपोज इफ आई एम एन इन्वेस्टर, व्हेन आई इन्वेस्ट इन फॉर्म ऑफ डेट व्हिच मींस आई गिव अ लोन टू समबडी, केस टू व्हेन आई गिव फंडिंग इन फॉर्म ऑफ इक्विटी, तो जो मैं रिस्क ले रहा हूँ वो इक्विटी में ज्यादा रिस्क लेता हूँ, डेट में कम रिस्क लेता हूँ, बिकॉज ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द डेट एंड इक्विटी। जैसे डेट में इंटरेस्ट रेट फिक्स होता है, इक्विटी में डिविडेंड रेट फिक्स नहीं होता है। डेट में इंटरेस्ट रेट मिलने की कमिटमेंट होती है, इक्विटी में रिटर्न मिलने की कोई कमिटमेंट नहीं होती। तो ये रीजन की वजह से इक्विटी में रिस्क ज्यादा हो जाता है और डेट में रिस्क कम हो जाता है फॉर मी एज एन इन्वेस्टर। अगर रिस्क इक्विटी में ज्यादा है तो ऑफकोर्स मुझे रिवॉर्ड भी ज्यादा चाहिए ना। मनमीत, यहाँ तक कोई डाउट? नो सर, नो सर। अगर मुझे रिवॉर्ड ज्यादा चाहिए तो रिवॉर्ड ज्यादा का मतलब क्या है? मुझे रिटर्न ज्यादा कि चाहिए। रिस्क लेना पड़ेगा, ज्यादा लेना पड़ेगा। तो मैं अगर इन्वेस्टर से ज्यादा रिटर्न मांगूंगा तो उसकी कॉस्ट भी तो इक्विटी में ज्यादा हो जाएगी ना।
ओके सर, ओके, अंडरस्टूड। तो इसलिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज्यादा हो जाता है कॉस्ट ऑफ डेट से। ओके। Any other question on this part? We are explaining this after we win the bid, right? No, no. अभी बिड विन नहीं हुई है, अभी तक हमने बिडिंग भी नहीं करी है। तो क्लाइंट बैंक्स के पास हम गए हैं, हमने बोला ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, ये गवर्नमेंट के कंडीशंस हैं, हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सारे मीट कर दिए हैं, हम बिडिंग का प्रोसेस में एंटर करने वाले हैं, अगर हमें बिड मिल जाता है तो क्या आप हमें लोन दोगे? वो कहता है हाँ। तो हमें कितने अमाउंट पे, कितने इंटरेस्ट रेट पे लोन दोगे वो बता दो। पैसा कुछ नहीं देगा बैंक अभी। देन विल गो बैक एंड डू आवर कैलकुलेशन। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट जीत गए तो हम जो वो बिड होगी उसके लेटर, जो अवॉर्डिंग ऑफ द लेटर होता है, अवॉर्डिंग ऑफ द बिड लेटर होता है, वो लेके आपके पास वापस आएंगे, तब आप इसको हमारे को लोन दे देना। बट बैंक बोलता है ठीक है, मैं तब दोबारा रीअसेस करूंगा। मैंने कहा कर लेना रीअसेस। तो वी गॉट एन अप्रोक्सीमेट आइडिया थ्रू दिस क्या बोलते बैंक रेट्स। अच्छा, वन मोर थिंग कि जो हमारा फाइनल बिड अमाउंट होगा, द प्राइस ऑफ द टोल, तो वो हमारी कॉस्ट असेसमेंट के बाद जो होगा, तो उसमें ये सारी कॉस्ट इंक्लूड होगी ना, दिस बैंक रेट एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल में? वो मैं मॉडलिंग में जब एक्सेल शीट स्टार्ट करूंगा तो आपको बताऊंगा कैसे कैप्चर करते हैं। बट अभी के लिए सिंपल आंसर इज यस। ठीक है। हाँ जी, एनीथिंग एल्स? Last time, any question on this? ठीक है, चलिए। So, so what we did इसमें, so let's assume हमें ऐसे नंबर्स मिल गए बैंक से, सॉरी ऐसे नंबर्स मिल गए हमें बैंक से। So what we did, जितने भी हमें बैंक से इंफॉर्मेशन मिली, उसमें हमने सबसे छोटे अमाउंट का जो लोन था वो पिक किया और सबसे हाईएस्ट रेट को पिक किया। तो सबसे लोएस्ट को पिक किया मैंने ये, और सबसे हाईएस्ट को पिक किया ये मैंने पिक करा फॉर आवर कैलकुलेशन। अगेन रीजन बीइंग कि ये फाइनल अप्रूवल्स नहीं है, ये काइंड ऑफ एन इंडिकेटिव अप्रूवल्स है। तो मैं इसके एक्सट्रीम सिनेरियो पे जा रहा हूँ कि अगर मुझे 10 बैंक ने बोला कि हम इतना लोन देंगे, तो उन सब में सबसे छोटा अमाउंट का जो लोन है मैंने वो पिक किया, और सबसे हाईएस्ट रेट जो है वो मैंने पिक किया। कोई डाउट यहां तक? ऐसा क्यों सर? ऑन द कंजर्वेटिव साइड, अगर मुझे 10 बैंक ने बोला मैं आपको इतना लोन दूंगा और सबसे कम लोन मुझे 125 करोड़ है, तो मैंने कहा ठीक है सबसे कम वाला लेता हूं, क्योंकि अगर मैं विद कॉन्ट्रैक्ट जीत गया तो इतना तो आराम से मिल ही जाएगा, इससे ज्यादा भी मिल सकता है, और इतना तो मिल ही जाएगा। सो लेट मी स्टार्ट माय कैलकुलेशन ऑन द मोस्ट एक्सट्रीम कंजर्वेटिव साइड। तो सर उस अमाउंट के रेट पर ही क्यों नहीं कंसिडर करेंगे कि लार्ज इंटरेस्ट रेट पर ही कंसिडर कर करेंगे? सकते हो, कर सकते हो, बट मैं और कंजर्वेटिव हो रहा हूँ, बिकॉज आई डू नॉट, मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं कॉन्ट्रैक्ट जीत जाऊं, उस मैं जो कैलकुलेशन कर रहा हूँ वो मेरी बेस कैलकुलेशन, यानी उससे ऊपर कॉस्ट ना जाए, उससे कम ही कॉस्ट रहे। तो इसलिए मैंने हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट का चूज किया। और 99% ये होता है जब आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है ना, तो इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है। तो जो 15.8 है
ये ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा जब मेरे हाथ में वो लेटर आ जाता है, बिकॉज बैंक के लिए वो रिस्क और कम हो जाता है। 16% नहीं है ना? सॉरी, हाँ सॉरी 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 सॉरी, माय बैड। तो फिर इसको 135 कर देते और इसको 130 कर देते। हाँ जी। सो ऑफ कोर्स बस मजदूर मैं चाहूँ तो 125 के सामने जो 15.5 है, 15.5 आइडियली मैं वो पिक कर सकता हूँ। बट एज आई सेड, वी वांटेड टू डू एक्स्ट्रापोलेट एंड वांट टू कीप इट मोर कंजर्वेटिव, बिकॉज हमें बिड करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए बिड करने के बाद मेरी कॉस्ट ऊपर नीचे हो जाए, नीचे हो जाए चलेगा और ऊपर चले जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग ऑन द एक्सट्रीम साइड्स। दिस इज व्हाट आई वुड प्रपोज बैक टू द क्लाइंट कि मैं ये करना चाहता हूँ फ्रॉम माय फाइनेंशियल लॉजिक पर्सपेक्टिव। अब मान लो आप लोग क्लाइंट है, आपको कोई इशू है इसमें, इफ आई प्रपोज दिस टू यू एंड आई एक्सप्लेन यू माय मेथोलॉजी एंड द लॉजिक ऑफ प्रपोजिंग दिस टू यू, एनी इश्यूज विद दिस, सो व्हाट आई विल प्रपोज टू यू कि टोटल 210 है, 210 में से हमें 125 मिल जाएगा मार्केट से, तो इसको डेट लेते हैं और जो बचा हुआ है इसको इक्विटी से लेके आते हैं। दिस इज माय प्रपोजल बैक टू द क्लाइंट। कोई डाउट है तो पूछिए। Can you please come up again with this? तो ये जो 125 और ये 16 हाईलाइट किया दीपक, यहाँ तक क्लियर है आपको? जो येलो में हाईलाइट किया, ये मैंने क्यों चूज करे? Okay, not clear. So ये नंबर्स मुझे गिवन थे, करेक्ट? मैंने इनके कंजर्वेटिव साइड पे नंबर्स पिक कर दिए। सो मुझे सब बैंक्स ने बोला सपोज 10 बैंक्स गेव मी कि हम इतना लोन दे सकते हैं, उन 10 बैंक्स ने मुझे सबसे लोएस्ट अमाउंट जो लोन देने का लेटर किसी ने दिया है वो लेट्स में 125 करोड़, तो मैंने लोएस्ट अमाउंट को पिक किया और हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट को पिक किया। Why it should not be 200 or 150 or 100? The things Why? would have been different. Why? Sorry, come again. Why? 125, 135, 130. This this figure can vary. Which figure can we? I want to know the optimality of 125 or 85. तो मुझे 10 बैंक लोन दे रहे हैं, लोन देने के Mhm. लिए इंटेंट दिखाया उन्होंने, ठीक है? Okay. सो उस लेटर्स में ये कॉन्ट्रैक्ट, ये एग्रीमेंट, ये क्लॉज होता है जो मैंने रेड में हाईलाइट किया है कि हमारे पास राइट है हम आपको लोन नहीं भी दें बाद में, ठीक है? तो ये फाइनल अप्रूवल नहीं आ गया जो लेटर, ये इंटेंट ऑफ लेंडिंग होता है, ठीक है? बट अगर मुझे 10 बैंक बोल रहे हैं कि मैं आपको 125 करोड़ दे दूंगा, कोई बोल रहा है 135 करोड़ दे दूंगा, कोई बोल रहा है 130 करोड़ दे दूंगा, तो उसी रेंज के आसपास है, बट प्लस माइनस स्मॉल परसेंटेज, स्मॉल डेविएशन है नोशनल में। तो मैं दो काम कर सकता हूँ, एक इसमें जो सबसे ज्यादा लोन का अमाउंट है वो पिक कर लूं, करेक्ट दीपक? इतना तो मिल ही Okay. जाएगा, Mhm. बट मैंने 135 पिक कर लिया और उस लेटर में एक क्लॉज भी है कि बैंक मना भी कर सकता है आपको। Pre-financing bid है ये तो करेक्ट करेक्ट। तो बैंक ने बाद में मना कर दिया और मैंने हाईएस्ट नंबर ले लिया। अब मैं दूसरे बैंक के पास जाऊंगा तो दूसरा बैंक मुझे 130 देगा, बट मैंने जो बिडिंग कैलकुलेशन कर ली वो तो 135 के हिसाब से कर ली थी। So is that a better proposition or I should do reverse कि मैं सबसे लोवेस्ट वाली कर लूं और बाद में अगर इससे ज्यादा लोन मिल गया तो अच्छी बात है, क्योंकि मेरी बिडिंग तो बेस पे रहेगी हमेशा। Mhm. तो मुझे 125 मतलब लोअर नंबर लेना चाहिए, हाईएस्ट नंबर लेना चाहिए? It's okay. We have to go for lowest number. इसलिए 125 लोएस्ट नंबर लिया मैंने, यहाँ पे ले आया ये। कोई डाउट यहाँ तक?
No, we are choosing बात हो गई। above 125 or so. Why we have not chosen 100? Which 100? We are saying that debt का cost कम है. Based on that, we have chosen this 125, 135, 130. These नहीं नहीं, aspects. ये 125, 135, 130 मैंने नहीं चूज किया, बैंक ने मुझे बोला इतना मैं लोन दे दूंगा। तो ये बैंक information, ए this ने, information we don't means that was not in there. अरे दीपक, वो इन्फॉर्मेशन क्लाइंट होना देगा, वो इन्फॉर्मेशन एज ए मॉडलिंग टीम आपको लेके आनी है ना, वही तो मैं लेकर आया हूँ। तो मैंने आपको मना थोड़ा किया था कि आप नहीं लेके आ सकते। अच्छा ठीक है, नई इन्फॉर्मेशन थी, मैंने और इन्फॉर्मेशन दे दी। अब आप बताओ, आई डोंट नो व्हाई वी गेटिंग इनटू द इन्फॉर्मेशन नहीं थी। ये इन्फॉर्मेशन अब है, अब बताओ कुछ डाउट है? द लॉजिक ऑफ दैट क्वेश्चन वाज कि अब आप बताओ कौन सी मेथोलॉजी आप यूज करोगे फॉर यू टू अराइव एट दैट नंबर, और ये इन्फॉर्मेशन क्लाइंट ने आपको दे दी। कैन यू थिंक ऑफ एनी मेथोलॉजी? और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मुझसे चाहिए तो मैं और भी देने के लिए रेडी हूँ। आपको इन्फॉर्मेशन और निकालना चाहते हो, कोई एजम्पशन करना चाहते हो, वो भी आप फ्री हो। तो अगर आप ये बोलना चाह रहे हो कि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी इसलिए हम नहीं कंप्यूट कर पा रहे थे, नहीं, it's not like that. It's not like that. पैसे तो जा रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है ये कि ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी? इस इन्फॉर्मेशन में जो मैंने यहाँ प्लॉट करी है, इसमें आपको कुछ इलॉजिकल लग रहा है तो आप मुझे ये बताओ कि हाँ यार ये लॉजिकल है। और दिस इज नॉट दी ओनली, इसके और भी मेथड्स हैं। हो सकता है कोई और फाइनेंशियल एनालिस्ट कह दे कि नहीं मैं ये मेथोलॉजी लेके जाऊंगा और ये मेथोलॉजी से वापस आऊंगा। लेट्स प्लॉट दिस। मैं तो अभी भी ओपन हूँ, किसी कोई और कोई मेथोलॉजी है सो वी कैन प्लॉट हियर आल्सो। जैसे हमने जो पहले डिस्कस करा 50-50 कहाँ से क्यों नहीं क्लियर हुआ, 60-40 नहीं हुआ, तो मैं तो यही नंबर्स आपको प्लॉट कर रहा हूँ कि ये नंबर्स मुझे मिले और उसके बेसिस में जा रहा हूँ। और वो 125 क्यों ले रहा हूँ वो भी आपको बता रहा हूँ, 135 क्यों नहीं ले रहा वो भी आपको बता रहा हूँ। तो मान लेते इन्फॉर्मेशन नहीं थी, अब ये इन्फॉर्मेशन है। It all varies. These numbers will vary from person to person based on because this पर्सन टू पर्सन मींस hypothetical है ना ये तो. We went to bank. हाँ करेक्ट। We went to bank. It all means based on your experience, you are saying these are the real numbers. Actually, I'm not able to visualize that aspect. नहीं, ये बैंक से लेटर्स दिए हमारे को, तो उस लेटर्स में लिखा हुआ है कि बैंक इज विलिंग टू गिव मी लोन ऑफ 125 करोड़। बैंक बी ने बोला कि बैंक बी इज विलिंग टू गिव 135 करोड़ लोन एंड सो ऑन। You are able to plot this aspect because you have that prior experience on that. हाँ तो वही तो शेयर कर रहा हूँ, उसमें आपको कुछ लग रहा है कि नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए तो बताओ, अगर हाँ तो आगे बढ़ते हैं। कोई इसमें डाउट है आपको कि ये अप्रोच गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए, इससे अच्छी और कोई अप्रोच हो सकती है तो वो बताओ। और नहीं, तो based on डिस्कशन your कर रहे हैं। experience, अगर ये values हैं ABC, then we can move ahead. No, this is not based on my experience. These are actual numbers which were given by the bank to us. हम कंफ्यूज ही, मतलब क्वेरी क्या है? ये नंबर्स एक्चुअल नंबर्स हैं जो बैंक्स ने दिए हैं हमारे को। आई थिंक 8 या 9 बैंक्स को हमने अप्रोच किया था, जिसमें से 7 ने हाँ कर दिया था, 1 या 2 ने रिजेक्ट कर दिया था। आई थिंक दिस इज ब्रॉडली नंबर व्हिच आई रिमेंबर। Okay. Means considering this cost of debt is less than cost of equity, we will go at least for beyond 50% because debt or equity का जो cost है, considering that aspect, we can derive this logic from this. नहीं मैंने ये नहीं बोला, मैंने उल्टा बोला। मैंने ये नहीं, बोला I'm not said that you're told. I'm just deriving a logic. So the logic which I have used in this is कि cost of debt lower है cost of equity से, so I will go up to as much debt I can raise from the market. Even if it goes 60% I am okay, even if it goes to 80% I am okay. मैं मार्केट से जितना भी रेज कर सकता हूँ उतना रेज कर लूंगा। अब मैं मार्केट में जाकर देखता हूँ कि मार्केट मुझे कितना देने के लिए रेडी है,
एंड एट व्हाट रेट। वो मैं गया, मैंने देखा 9 बैंक को अप्रोच किया, 9 बैंक में से 1 या 2 बैंक ने कहा हम नहीं देंगे आपको, 7 बैंक ने हाँ क्या हाँ दे दे। मैंने कहा लेटर लिख के दे दो मुझे, उन्होंने लेटर लिख के मुझे दे दिया, उसमें उन्होंने बताया ये दिस इज व्हाट वे वी आर। अच्छा सर, हेलो। हाँ फजूल। अच्छा सर, ये गवर्नमेंट जो है ये स्टार्टअप कंपनी को ही क्यों चूज करेगा? स्टार्टअप कंपनीज को किस बेसिस पर इसे प्रोजेक्ट देगा? वो एक रनिंग वेल कंपनी को भी तो दे सकता था दे सकते इजिली हैं, तरीके मैंने से। कब बोला कि हमें ही क्योंकि देगा? वो तो बिडिंग प्रोसेस होगा। बिडिंग स्टार्टअप प्रोसेस कंपनी में होगा जो है, हाँ, मजदूर, बिडिंग प्रोसेस होगा, उस बिडिंग प्रोसेस के बाद जो जीतेगा उसको मिलेगा। बिडिंग प्रोसेस में ही वो भी गवर्नमेंट सेक्टर ये भी तो सोचेगा, काम क्योंकि नहीं है वो, मेरा काम नहीं है वो, मेरा काम नहीं है वो, गवर्नमेंट का काम है डिसाइड करना। आप एज अ पार्ट ऑफ द मॉडलिंग टीम, आपका काम ये है कि आप बेस्ट बिड क्लाइंट को दे और वो बेस्ट बिड जाके आके सबमिट करे, खत्म। क्लाइंट के वो गवर्नमेंट के पैरामीटर्स क्या होंगे, आपको देगा नहीं देगा, वो किसको देगा, रनिंग कंपनी को देगा, स्टार्टअप कंपनी को देगा, वो हमारा तो ना काम है। अच्छा सर, हमारा ये काम है स्टार्टअप उस कंपनी, बिड के लिए हमारा काम है उस बिड के लिए सबसे बेस्ट बिड सबमिट करना, हाँ या ना। तो हम वो काम कर रहे हैं। क्लाइंट हैज कम टू अस फ्रॉम ए फाइनेंशियल कंसल्टेंसी पर्सपेक्टिव। हाँ बोलो। मैं ये कह रहा हूँ कि स्टार्टअप कंपनी जो है एक कंपनी पर भी डिपेंड करती है कि वो किस कंपनी का है। नहीं समझा, क्वेश्चन नहीं समझा। जैसे एक रिपीट करो। रिलायंस कंपनी है, तो वो अपना स्टार्टअप कंपनी जो स्टार्ट करेगी कहीं भी, हम्म। तो वो स्टार्टअप कंपनी रिलायंस पर भी डिपेंड करेगा कि हाँ ये कंपनी है तो रिलायबल कंपनी है, इस पर इन्वेस्ट करना चाहिए। प्रमोटर की क्वालिटी होती है ना, तो प्रमोटर पे डिपेंडेंसी होती है ना। जो स्टार्टअप होता है, प्रमोटर कौन है, उसकी क्रेडेंशियल्स क्या है, वो कितनी क्वालिटी वो मैटर करती है ना। क्योंकि जब एक स्टार्टअप कंपनी होती है, आप किससे बात कर रहे हो? आप किसी बंदे से बात करते हो, कंपनी तो एग्जिस्ट नहीं कर रही ना, आप किसी पर्सन से बात करते हो, राइट? वो पर्सन कौन है वो मैटर करता है ना। स्टार्टअप में ऐसे ही होता है, चाहे प्राइवेट इक्विटी में जाओ चाहे कहीं पे भी जाओ। वो जो बंदा आइडिया लेके आता है, जो बंदा उस पूरे बिजनेस को रन करने की बात कर रहा है, उसकी एबिलिटी कितनी स्ट्रांग है वो मैटर करती है। तो अगर वो बैक्ड बाय रिलायंस है या बैक्ड बाय कोई और है, तो ऑफ कोर्स वो बेटर हो जाती है। एनी अदर क्वेश्चन? जैसे एक लिस्टेड कंपनी जो है वो प्राइवेट इक्विटी लेकर के आ सकती है क्या? हाँ लेके आ सकती है। कैसे सर? वो अलग बात करेंगे फजलूर, ऑफ ट्रैक हो जाएगा। और ये पहले बात करी हुई, जब प्राइवेट इक्विटी की बात करी, मॉडल पे रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो लिस्टेड कंपनी का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, तो ये इसको लाके थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो जाएगा। हाँ तो प्राइवेट इक्विटी के पुराने वो देख लेना, अगर फिर भी क्लियर नहीं है तो अलग से पूछ लेना, अभी इसको मॉडल में मत लेकर आओ। ठीक है। हेलो हाँ सुभाष। सर, एक चीज जैसे 125 का एबीसी 3 पार्ट है लोन का मिल रहा है, तो यहाँ पे हम इंटरेस्ट रेट को भी तो कवरेज करेंगे ना सर, कि जो बैंक कम से कम इंटरेस्ट रेट दे, तो उसको भी हम जाके पिकअप करने का कोशिश करेंगे ना। देखो सुभाष, मैं सबसे ज्यादा वाले को लूंगा। उसका लॉजिक मैंने आपको बताया कि मैं एक्सट्रीम सिनेरियो लेके चल रहा हूँ, एक्सट्रीम वर्स्ट सिनेरियो लेके चल रहा हूँ। एक्सट्रीम वर्स्ट क्या, मुझे सबसे कम लोन मिले, सबसे ज्यादा रेट हो, ये एक्सट्रीम वर्स्ट सिनेरियो है ना सुभाष। यस सर। तो वही मैं वो लेना चाहता हूँ, जिससे मैं क्लाइंट को सबसे वर्स्ट सिनेरियो दिखाऊं
कि एक्सट्रीम है, ये हो सकता है कि आपको सबसे कम लोन मिले और सबसे ज्यादा रेट पे, उससे अच्छा हो गया तो क्लाइंट के फेवर में है ना, बट उससे गंदा हो गया तो आई एज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर इज नॉट डन माई जॉब ना। तो अगर आप लोग को लगता है कि आपको सबसे बेस्ट नंबर्स पिक करने चाहिए तो आप सबसे बेस्ट पिक कर सकते हैं, बट मैंने जो लॉजिक्स बताया कि हम क्लाइंट को कंजर्वेटिव व्यू दिखाना चाह रहे हैं कि इस इतना तो हो ही जाएगा, और उसका रीजन है ये जो रेड में लिखा है ना, ये टर्म कि बैंक के पास अभी भी राइट, अगर ये बैंक बोलता ना कि मैं आपको दे ही दूंगा, प्रॉमिस कर रहा हूं आप, तो मैं फिर कंजर्वेटिव नहीं लेता, मैं जो सबसे बेस्ट होता वो लेता। बिकॉज ऑफ दिस क्लॉज आई आई बिलीव वो बेटर है कि आप कंजर्वेटिव क्लॉज है, बिकॉज बैंक बाद में मना भी कर सकता है या इंटरेस्ट रेट को रीअसेस भी इंटरेस्ट रेट को चेंज भी कर सकता है। किसी को डाउट नहीं आता? ठीक है, सो ये क्लियर है कि हम 125 का लोन एट अ रेट ऑफ 16% तक पहुंच गए। किसी को डाउट यहाँ तक 125 16% के कॉम्बिनेशन पे कैसे पहुंचे या कहा, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। ठीक है, तो इतना रखते हैं। ठीक है, मैं इसको सेव कर लेता हूँ, कंटिन्यू विद दिस। ठीक है, FAP20 है ना ये। ठीक है, विल कंटिन्यू विद दिस इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, और आपका नेक्स्ट क्लास वेडनेसडे को होगा। ठीक है, Yes. ठीक है, चलिए, थैंक्स। Thank you.